Hello and welcome to Direct Tax lecture. First, we are going to see the concept. First concept is basic concept of section 1 to section 4. Now, direct tax is called as an income tax and it is governed by the Income Tax Act 1961. First of all, we have to see here. You can see Income Tax Act 1961 amended up to date. The provisions of income tax extended to the whole of India and become effective from 1st April 1962, section 1. The Act contains provisions for determination of taxable income, determination of tax liability, procedure for assessment, appeals, penalties, and prosecutions, and last one is power and duties of income tax authorities. See to it that Income Tax Act is amended on 1961, but it is effective from 1st April 1962. Okay, next concept is assessment year. Assessment year is section 2, subsection 9. Okay, now here you can see assessment year. What is the meaning of assessment year and how you can write the answer if in exam it comes that answer in one line. What is assessment year? You can write this. Okay, now we have to see what is the assessment year is. Assessment year means the period of 12 months commencing on first day of April every year. It is the year just after the previous year in which income earned in the previous year is charged to tax. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. There is example here. Assessment year 2021 is a year which commences on 1st April 2020 and ends on March 31st 2021. Income of an SSC earned in previous year 2019 and 2020 is assessed in assessment year 2021. मतलब साधारण भाषा में यहाँ पे बोलूँ तो असेसमेंट ईयर जो होता है वो 2021 अभी चालू है और 2019 और 2020 का जो साल है मतलब मार्च 1 मार्च 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक इंसान ने जो भी इनकम कमाई है, जो पैसा कमाया है, उसका असेसमेंट, उसका जो चेकिंग जो होता है वो होता है तुम्हारा 2020-21 में. उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर. ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर ये कंसेप्ट आ गया है. प्रीवियस ईयर 2019-2020 ये है प्रीवियस ईयर यहाँ पे आप पैसा कमाते हैं और उसका जो असेसमेंट है, उसका जो चेकिंग है, जो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि एसएससी जो होता है, जो इंसान होता है, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है. वो जो रिटर्न फाइल करने का रहता है वो पिछले साल का जो आपने जो कमाया है वो रहता है. अभी यहाँ पे टैक्स पॉइंट देखो क्या दिया है, ड्यूरेशन पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April and I am adding to it that it is end on 31st March next year. Relationship with previous year, it falls immediately after the previous year. Assessment year जब चालू होता है उसके पहले साल जो होता है वो होता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर. पर्पस, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेस एंड टैक्सेबल इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट. अभी जैसे मैंने समझा कि 2019-20 जो ये साल था ये प्रीवियस ईयर है. जैसे 31 मार्च 2020 खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020 से असेसमेंट ईयर चालू हो जाता है. मतलब ये साल से आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 का जो पैसा कमाया हुआ रहता है उसका असेसमेंट यहाँ पे चालू होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ गया है. नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर इज सेक्शन 3. प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर. मतलब असेसमेंट के तुरंत पहले का जो होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर. यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे कंसेप्ट जो समझाया था आपको हिंदी में, वहां पे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है इनकम अर्न इन अ ईयर इज असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर. इनकम अर्न इन अ ईयर, ये इनकम अर्न इन अ ईयर लिखा है, दैट इज योर प्रीवियस ईयर. Okay, the year in which the income is earned is known as a previous year, and the next year in which the income is assessed, जहाँ पे checking होता है, is known as assessment year. It is mandatory for all SSCs, मतलब जो भी tax payers हैं, to follow financial year. Financial year मतलब जो हमारा 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर खत्म होता है, as previous year for income tax purpose. Okay, next is SSC. SSC means a person by whom any tax or any other sum of money, that is penalty or interest, is payable under this act, irrespective of the act, whether any proceedings under the act has been taken against him or not. अभी यहाँ पे देखो एसएससी का मतलब जो होता है, जो टैक्स पे करने वाला बंदा होता है या फिर कोई एंटिटी होता है वो. यहाँ पे मैं पर्सन भी बोला है, यहाँ पे पर्सन का मीनिंग आपका बाद में आ जाएगा. पर्सन बहुत सारे होते हैं इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से.
सो यू विल सी टू इट कि वो पर्सन जो है वो कौन कौन है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल भाषा में जो एसएससी लिखा है उसका मतलब है कि अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी विच कैन बी पेनल्टी और इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट एक देखो, पर्सन, पर्सन की भाषा दी हुई है, कौन कौन से एक ब्रांच है वहाँ पे कौन कौन से पर्सन आता है। फर्स्ट दिखा है, देखो लिया है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अदर। एंड इंडिविजुअल एचयूएफ में क्या होता है, रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट इन इंडिया में आता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये कंसेप्ट आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में समझाया जाएगा। अदर में आता है रेसिडेंट इंडिया, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अभी यहाँ पे आता है असेसमेंट। असेसमेंट इज सेक्शन 2(8), सबसेक्शन 2(8) एंड फर्स्ट लिखा है अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनकम एंड टैक्स। नेक्स्ट इज इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। पर्सन सेक्शन 231, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि ये नॉर्मली आपको वन लाइन में या फिर एक कंसेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका असाइनमेंट भी आपको आ जाएगा बाद में। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एन इंडिविजुअल। पहला क्या है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हम लोग, नॉर्मल इंसान जो होते हैं, जिसका नाम होता है रोशनी, यहाँ पे एग्जाम देते हैं रोशनी प्रथमेश, एनीथिंग कैन बी। सेकेंड वन इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एग्जाम्पल दिया है फैमिली बिजनेस किराना वाणी, मतलब ये जो किराना वाले जो होते हैं आपने देखा होगा, या फिर जिनका फैमिली बिजनेस होता है बहुत सालों से चलता रहता है वो। थर्ड वन इज अ कंपनी। एग्जाम्पल दिया है HUL एंड PNG, मतलब हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड एंड PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। नेक्स्ट इज अ फर्म। फर्म मतलब कोई भी सीए का फर्म हो या फिर कोई भी जॉइंट, मतलब एक साथ आके जो काम करते हैं उसको फर्म बोलते हैं। सीए का मोस्टली एक एग्जांपल दिया है मैंने, जादव एसोसिएट एक एग्जांपल है। नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको शॉर्टकट में एओपी बोलते हैं, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को BOI बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे, अ ट्रस्ट और अ क्लब। ठीक है, ये याद रखना एग्जाम्पल, क्योंकि ये आपका असाइनमेंट में आपको मददगार साबित होगा कि ये फाइंड आउट करने में कि कौन सा पर्सन है। नेक्स्ट इज अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी भी होता है BMC, ग्राम पंचायत। ठीक है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी, मतलब ये पहले 6 में जो नहीं आता है वो यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे भगवान को भी नहीं छोड़ा है इनकम टैक्स ने। अ डेटी, एन आइडल, अ यूनिवर्सिटी ऑल्सो, अ बार काउंसिल एक्सेट्रा। तो ये जो है इनको भी आना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे टेम्पल वगैरह कुछ आ गया तो यहाँ पे, या फिर आइडल ऑफ श्री कृष्णा ये होता है, भगवान का मूर्ति रहता है, उसको भी टैक्स लग सकता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स से कुछ छुट्टा नहीं है, ये सभी जो एक प्रकार के ब्रांचेस है, या यहाँ पे एक सब डिवाइडेड कैटेगरी बोल दो यहाँ यहाँ पे, कि जहाँ पे हर एक इंसान जो होता है वो लायबल होता है टैक्स पे करने के। पर्सन का मतलब अभी इनकम टैक्स के हिसाब से समझ लो, ये 8 जन है, ये 7 जन है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक केस और स्टेटस लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है केस और स्टेटस। यहाँ पे आप लोगों को असाइनमेंट आ जाएगा कि क्या करना है। पहला एग्जांपल लिखा है मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये क्या है, स्टेटस मतलब ये कौन है, पर्सन कौन है, ये इंडिविजुअल है, ये HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर कंपनी है, या फर्म है, या AOP है, BOI है, या लोकल अथॉरिटी है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कौन है। अमिताभ बच्चन कौन है, जॉइंट फैमिली ऑफ मिस्टर राम, मिसेस राम, देयर सन लव कुश कौन है, कोलकाता यूनिवर्सिटी कौन है, X&Y लीगल हेयर ऑफ जेड कौन है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस कौन है, पार्टनरशिप बिजनेस कौन है, अखिल भारतीय मित्र मंडल व्हाट इज दैट, कौन सी कैटेगरी में ये 7 जो दिए कौन सी कैटेगरी में आता है, आइडल ऑफ श्री कृष्णा ये कौन सी कैटेगरी में आता है। ये एक एग्जाम्पल दिया है, वो आपको बाद में लिखना है। नेक्स्ट, इनकम। अभी इनकम यहाँ पे देखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही ये दिया हुआ था, कैश वर्सेस काइंड है, सिग्निफिकेंट मेथड अकाउंटिंग, नेशनल इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिट है, लॉस है, डिस्प्यूटेड इनकम है, लमसम रिसिट है, रियम्बर्समेंट है, लीगलिटी, डबल टैक्सेशन, इनकम म्यूचुअल। ये एक बार गो थ्रू कर लेने को मैं बोला था, फिर भी आप लोग देख लो कैश और काइंड में क्या आता है। Income may be received in cash or in kind. Income received in kind is to be valued as per the rules prescribed, and if there is no specific direction regarding valuation in tax or rules, it may be valued at market price. Cash तो समझ में आ जाता है, चलो कैश आ गया। काइंड क्या होता है, काइंड मतलब समझो मैंने किसी को एक सर्विस दी, और उस सर्विस के बदले में वो बंदे ने मुझे कैश नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया, लेकिन काइंड काइंड मतलब गाड़ी दी समझो। हाँ, पेमेंट के मुताबिक मुझे गाड़ी दे दी,
तो वो आ जाता है काइंड में। ठीक है, ये काइंड का मतलब लिटरली मत लेना, कैश वर्सेस काइंड, कैश मतलब एक मॉनेटरी वैल्यू और काइंड मतलब एक गिफ्ट ले लो या फिर कुछ भी ऐसा चीज ले लो, जैसे मैंने एग्जांपल गाड़ी का लिया। सिग्निफिकेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इज इररेलेवेंट इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज, या बाद में आएगा आपको, income from house or property or capital gains, method of account is irrelevant, method of account is relevant in case of income under the profit gains business। ये जब चैप्टर चालू होगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। national income, a person cannot make profit out of transaction with himself, hence goods transfer from one department to another department at a profit shall not be treated as income of the business। Sorry, notional income, sorry, a person cannot make profit out of transaction with himself, hence goods transfer from one department to another department at a profit shall not be treated as income from business। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ तो उसको इनकम माना नहीं जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम, इनकम में बी फ्रॉम अ टेम्पररी सोर्स और फ्रॉम परमानेंट सोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी के लिए थोड़ी 15 दिनों के लिए सर्विस दी कुछ, तो वो हो जाएगा टेम्पररी सोर्स मेरे मेरे लिए। लेकिन परमानेंट सोर्स मतलब मेरा जॉब है, चालू है, सैलरीडाइड हूँ, तो सैलरी जो आता है वो होगा मेरा परमानेंट सोर्स। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, कैपिटल इज नॉट लायबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफाइड प्रोवाइड इन द एक्ट, whereas the revenue receipt is not exempted unless specific provided in the act। Further, फॉलोइंग हेडिंग मतलब कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आपको कैपिटल गेन में आने वाला है, तो अभी ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं मैं अभी। ठीक है, लॉस इनकम ऑल्सो इंक्लूड निगेटिव इनकम, अभी लॉस जो होता है वो भी आपको सैलरी और उसमें कैपिटल इनकम में आ जाएगा, कैपिटल गेन में आ जाएगा। Disputed income. In case a dispute regarding the title of income, assessment of income cannot be withheld, and such income normally be taxed in a hand of recipient। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इनकम किधर से आया, तो उसको भी इनकम माना जाता है। ठीक है, लमसम रिसीव, लमसम मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, डिफरेंस नहीं है। लमसम मतलब एक साथ पैसा जो समझो 5 लाख एक साथ आया, या फिर एक एक लाख ऐसा इंस्टॉलमेंट में आया, लेकिन कुछ भी हो जाए वो इनकम इनकम है। रीइम्बर्समेंट, मियर रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट एन इनकम, मतलब मैंने कुछ खर्चा किया, रीइम्बर्समेंट का मतलब समझ लो। रीइम्बर्समेंट मतलब मैंने मेरे जॉब में हूँ और जॉब के लिए या फिर मेरे एम्प्लॉयर के लिए, मेरे बॉस के लिए कुछ खर्चा किया, ऑफिस के लिए कुछ खर्चा किया, और वो खर्चा मुझे वापस ऑफिस वालों ने दे दिया, तो वो इनकम माना नहीं जाता है। ठीक है, लीगैलिटी, द एक्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन लीगल और इनलीगल इनकम। डबल टैक्सेशन, some income cannot be taxed twice, of course। Income by mutual activity, in this regard it is to be noted that in case of mutual activities where some people contribute to the common fund and are entitled to participate in the fund, and the surplus arises which is distributed among the contributors of the fund, such surplus cannot be termed as income। Exception, income derived by a trade, professional or similar association from rendering specific service its members shall be taxable under section 28(3)। ज़्यादा इसमें जाना मत, क्योंकि ये आपके मोस्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन म्यूचुअल एक्टिविटी जो होता है, अगर समझो दो तीन लोगों ने एक कॉमन फंड बना के पार्टिसिपेट किया और उसमें उनको फायदा हुआ, तो पार्टनरशिप के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है और उसको एज अ बिजनेस के हेड में आ जाता है, या फिर प्रोफेशन के इसमें आ सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिखा है कि सरप्लस जो आता है एक साथ जो इनकम आएगा उसको इनकम कहा नहीं जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन दिया है कि अगर ट्रेड है, प्रोफेशनल है, सिमिलर एसोसिएशन है, तो उसमें वो टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, profit and gains of any insurance business carried by a mutual insurance company। Profit and gains any business of banking include providing credit facilities carried on cooperative with its members, it doesn't matter। Okay, pin money, this is important, this is very important for you। Pin money is a money received by wife for her personal expenses and small savings made by a woman from money received from her husband for meeting household expenses। Such receipt is not treated as income। नोट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ पिन मनी शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। यहाँ पे देखिए, अगर एक शादीशुदा जोड़ा है और उन्हें उसमें हस्बैंड ने वाइफ को कुछ घर के खर्चे के लिए कुछ पैसा दिया, और वाइफ ने वो खर्च सेविंग किया और वो सेविंग डाला, तो उसको यहाँ पे उस रिसीट को मतलब उस पैसे को इनकम माना नहीं जाता है। लेकिन अगर वो पैसा वाइफ ने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे देखिए नोट दिखा है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्ट किया या एफडी में डाला या फिर ऐसा कुछ किया, तो उस
इस पे टैक्स लगता है, या फिर उसको इनकम माना जाता है। याद रखना, अगर घर खर्ची के लिए दिया और वो खर्चा हो गया या फिर घर में ही रखा तो उसको न माना इनकम माना नहीं जाता। लेकिन अगर वो पैसा बैंक में डाला और बैंक में एफडी में किया या फिर कोई आरडी किया, नो रिकरिंग डिपॉजिट और एनीथिंग लाइक दैट, तो उसको इनकम माना जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके मम्मी मम्मी पापा को ये बात मालूम होगी या अगर ये करते होंगे तो इसको याद रखना, ये पिन मनी बोलते हैं, ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। नेक्स्ट इज अवार्ड। अवार्ड रिसीव बाय अ पर्सन related to his business or profession shall be treated as an income incidental to such business or profession. However, award received by non-professional person is in a nature of gift or a personal testimonial. The taxability thereof is subject to other provision of the act. अभी यहाँ पे देखिए, अवार्ड अगर कुछ मिलता है इज सब्जेक्ट टू टैक्स है, मतलब टैक्स में अलग अलग एक्ट्स हैं, अलग अलग सेक्शन है, उस हिसाब से उसको टैक्स लगेगा नहीं नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल एक बता, तो वीर चक्र मिला तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज इट्स गिवन फॉर द ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स, तो उनको ये टैक्स नहीं लगता, उसकी फैमिली को टैक्स नहीं लगता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अदरवाइज जो अवार्ड देखो यहाँ पे दिखा है, रिलेटेड टू इस बिजनेस और प्रोफेशन इज शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। एम्बेजलमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेजलमेंट, money embezzle is a gain to the embezzler and therefore falls within a wider definition of एम्बेजल का मतलब आप चाहे तो गूगल कर लो, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये मतलब धोखाधड़ी, मतलब लूटना, ठगना। अगर ठग के किसी को पैसा कमाया है, जो प्रॉफिट हुआ, ये देखो गेन लिखा है यहाँ पे, तो एम्बेजलर जिसने धोखाधड़ी की है, ठगा, ठगने वाला जो है वो, उसको ये इनकम माना जाता है। कंटीजन इनकम, कंटीजन और एंटीसिपेटेड इनकम इज नॉट टैक्स, मतलब आने वाला पैसा। तुमको पता है तुमने सर्विस दिया है लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं, लेकिन आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, तो उसको टैक्सेबल नहीं कहा जाता। सब्सिडी, सब्सिडी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ये पढ़ लेना। असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी और ग्रांट, कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवर और कंसेशन और reimbursement by whatever name called by the central government or state government or any other authority or body origin cash or kind to the SSA। एग्जाम्पल एलपीजी की सब्सिडी जो मिलती है, वो सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग इन बैकवर्ड एरिया is however subsidy for or grant or reimbursement which is taken into account for determination of the actual cost of the asset as per the explanation set 10 to section 43(1) is not taxable separately. The subsidy or grant by the central government for the purpose of the corpus or trust or institution established by central government or state government shall not be taxable। ये जो दो है वहाँ पे टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बाद में पूछ सकते हो अपने क्लासरूम में ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।